In the previous class of MOS, we were studying about eccentric column, and we also derive one relationship to calculate the maximum stress at any point in a column, provided we have been given with these factors or these unknown. So there are two types of numericals or examples related to these column. One is about analysis of column, and the other one is design of these columns. So before actually moving on to this one, I just want to explain that how can we use this equation. For example, if let's suppose we have been provided with these factors E, C, R, A, and D, which are the cross-sectional properties, and also if P is given to you, then you can directly use this equation to calculate the stress at the point or the stress based on this given load. But the thing is, if sigma is an un if sigma is given to you or stress is given to you, this particular factor, then you can't figure out this P factor directly. It is a trial and error procedure. You have to see, because there are two terms of P factor and you just can't directly solve it. But now since you have the calculators in which you can substitute this whole equation in terms of this unknown P, and you may get a direct answer. But previously when there were no equation, then it was quite difficult to get P value from this one. So if all other factors are given to you and sigma is also given to you, then they would do the trials. For example, they will substitute one value of P1, then 2, 3, 4, and then see whether this right side is coming equal to the left side. So it was that kind of a procedure. And also in some of the literature, even in the Hippler book as well, you will find some design charts as well. And in those design charts, usually there are these kind of curves given to you. In those curves, for example, if this curve, it will be specified that for this curve, the value of E is 1, for example, R is 2, and C is 3. And also it has been mentioned that the stress, if for example, if stress varies on this axis, then you can see that if the given stress is 10 megapascal, then you will go to that particular curve for which these values, other values are given. And you will see that for 10 megapascal, this load is coming out to be whatever XYZ value. So this is how these type of equation was solved previously, and even today in some books they do use these type of graphs to calculate the p value. But now since our calculators can also solve these type of equation directly, so we won't be needing this one. So the purpose is I just wanted to let you know that just for the sake of your information, that how these design charts are made. And even in the next courses, for example, for concrete structures, you will see that there are numerous such design charts. There are these type of equation while you are doing the analysis or design. And in some cases, you can't solve these equation even on the calculators as well. So for that particular case, you do need to use those design charts. And for example, for an X unknown, maybe Y is given to you, and then you have to go to the graph to calculate the values of these unknown variable. So one way to solve this equation is through algebra, but the other way around is that you have been provided with some kind of graphs and you can use that to get the values. Okay, so this is about how what type of unknowns or can occur in this type of equation. And then there is also another concept that is about working load and factor of safety. For example, if someone mention that I need to design a column or I have this particular space जहाँ पे उसने कॉलम देना है और वो कहता है कि इस कॉलम पे लोड जो आएगा वो 20 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है? तो और दे आस्क यू टू डिज़ाइन दैट पर्टिकुलर कॉलम. अब इस केस में आप क्या करोगे? जब आप डिज़ाइन कर रहे होगे ना, तो आप ये एज्यूम करोगे कि जी जो कॉलम पे लोड आ रहा है ना, वो लोड है इस 20 किलो न्यूटन से कोई ज़्यादा वैल्यू. फॉर एग्जांपल वो 40 किलो न्यूटन है, ठीक है? आप ये वैल्यू एज्यूम करोगे और फिर इसके बाद आपके पास जो भी वो सिग्मा की इक्वेशन हमने ऊपर लिखी हुई है,
आप इस इक्वेशन में ये 40 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और इस वैल्यू के बेस पे ना आप स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे। अब क्या होगा कि जब आप ये करोगे तो आपके पास ये ऑब्वियसली अगर 20 से आप निकालोगे तो मे भी स्ट्रेस की वैल्यू कम आए, अगर आप 40 सब्स्टिट्यूट करके निकालोगे तो स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इस पूरे प्रोसीजर से क्या हुआ है आपके पास कि आपने एक सेफ्टी रख ली है, और ऑल्दो एक्चुअल में आपके पास लोड ज़्यादा है या एक्चुअल में आपके पास लोड कम रख रहा है, लेकिन जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है ना वो आपने ज़्यादा लोड के लिए किया हुआ है। तो ये हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर ये कॉलम है इस पे पूरी लाइफ पे लोड ही 20 किलो न्यूटन रहेगा, लेकिन ये डिज़ाइन 40 किलो न्यूटन के लिए हुआ हुआ है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि इन केस कोई एक्सीडेंटल कोई रीज़न हो जाती है कि जिसकी वजह से लोड बढ़ जाता है तो वो इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि 40 तक जाए, इवन कहीं 30-35 तक अगर जाता भी है तो योर कॉलम कैन सस्टेन दैट पर्टिकुलर लोड। तो ये जो लोड है ना आपके पास जो एक्चुअल लोड स्ट्रक्चर पे लग रहा होता है इसको फिर आप कहते हो वर्किंग लोड, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू फैक्टर्स। और इस P जो है ना इसको आप डिजाइन लोड भी कह सकते हो या यू कैन कॉल दैट एज डिजाइन लोड, और इन दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है दैट इज NPW। सो PW is the actual load which you have to mention at site or which is acting on the column, लेकिन जो डिजाइन लोड है या जिस पे ये डिजाइन हुआ हुआ है कॉलम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस P फैक्टर, और ये जो N है दैट इज योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये N फैक्टर कैसे फिगर आउट करते हैं, डिफरेंट डिजाइन मैनुअल्स में या डिजाइन कोड्स होते हैं आपके पास, उसमें आपको स्पेसिफाई किया होता है कि जी इस टाइप की अगर बिल्डिंग हो या इस तरह का लोड लग रहा हो तो आप उस पर फॉर एग्जांपल जिस तरह स्कूल बिल्डिंग है तो उसके लिए हो सकता है कि N फैक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा आ सकता है। इसी तरह रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसमें हो सकता है फैक्टर कम हो। सो दिस इज योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड यू नो व्हाट इज वर्किंग लोड नाउ कि जो एक्चुअल पे उस पे लग रहा होगा, और दिस P इज द डिज़ाइन लोड। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि जो इस इक्वेशन से आपके पास स्ट्रेस आएगी, ऑल तो वो स्ट्रेस की वैल्यू एक ज़्यादा वैल्यू होगी कंपेयर टू कि जब अगर आप इसमें PW सब्सटीट्यूट करके स्ट्रेस निकालते हो। ठीक है, तो PW से आपके पास जो स्ट्रेस आनी थी इसको मैं सिग्मा W कह देता हूँ, दैट वुड बी लेस देन द स्ट्रेस जो कि आपके पास P लोड सब्सटीट्यूट करके आ रही है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि जी मेरा कॉलम या इस स्ट्रेस को ना, अब आपने स्ट्रेस ज़्यादा लिया, आप इस स्ट्रेस को कहोगे कि ये सिग्मा वाई पी है। अब जो फॉर एग्जांपल इधर आप इसी इक्वेशन में लिख लो कि इस स्ट्रेस को मैक्सिमम हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये सिग्मा वाई पी है। अब ये सिग्मा वाई पी का क्या मतलब है, कॉल इट एज यील्ड स्ट्रेस। वी विल स्पेसिफाई कि हमारा कॉलम इस स्ट्रेस पे फेल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो तो वो ये अल्टीमेट स्ट्रेस होती है आपके पास, एंड यहाँ पे कहीं सिग्मा वाई का पॉइंट होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कहोगे कि जी ये मेरा, क्योंकि आपने जो सेक्शन डिजाइन करना होता है ना वो आप अल्टीमेट पे करते हो, तो आप अल्टीमेट को कंसीडर ही नहीं कर रहे, आप सिंपली स्पेसिफाई कर देंगे कि जी हमारी जो स्ट्रेस है, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस ये कॉलम बियर कर सकता है वो लेस है कंपेयर टू द अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि हमने उसको इतना सेफ डिजाइन कर लिया है। फॉर एग्जांपल सिग्मा वाई पी अगर 10 है, 10 मेगा पास्कल मैं कह लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको डिजाइन किया है 10 मेगा पास्कल का लोड कंसीडर 10 के ये 10 मेगा पास्कल स्ट्रेस बियर कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेक्शन एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन मैंने सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा लोड 20 किलो न्यूटन लग रहा है और ये 10 मेगा पास्कल स्ट्रेस के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा, बजाय इसके कि मैं ये सिग्मा अल्टीमेट कंसीडर करता जो कि इससे मैक्सिमम है। तो इससे क्या होता है कि मेरा सेक्शन एक लाइटर सेक्शन होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि जी ये तो 100 मेगापास्कल रेजिस्ट कर सकती है बॉडी, तो एक लाइटर सेक्शन में कंसीडर कर लेता। ठीक है, और इस वजह से क्या होता कि इट वुड हैव वो सेफ डिजाइन ना होता, या दैट वुड बी योर अनसेफ डिजाइन। तो यू विल से कि जी मेरा कॉलम इतनी ही स्ट्रेस रेजिस्ट कर सकता है 10 मेगापास्कल। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप जब इसको डिजाइन करोगे तो आप ऑलरेडी उस पर कम लोड या कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन डिजाइन करोगे डिपेंडिंग ऑन योर लोड, और वो भी एक आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो ये दो तरह के फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं, या दो तरह की सेफ्टी इसमें इनकॉर्पोरेट की हुई है। एक तो डिज़ाइन करते हुए आप जो है लोड है उसको इंक्रीज कर देते हो, उसका ये फ़ायदा होता है कि जी आप एक्चुअल में कम लोड लग रहा होगा
लेकिन आपने डिज़ाइन उसको ज़्यादा लोड के लिए किया होगा। इसी तरह आप जब स्ट्रेस शो करते हो तो आप कैलकुलेट तो ज़्यादा लोड के लिए कर रहे होते हो, लेकिन आप उसको कहते यही हो कि जी ये मेरी यील्ड स्ट्रेस है, इसी पे फेल होगा, इससे ऊपर वो जाएगी नहीं स्ट्रेस। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर लेट से यहाँ तक स्ट्रेस आई है तो आपके पास इतना मार्जिन है अभी भी फेलियर में। ठीक है, ऑल्दो एक्चुअल में क्या होना है कि स्ट्रेस ये 400 मेगापास्कल तक भी रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहा होगा कि जी ये 100 मेगापास्कल रेजिस्ट करेगा, तो ये आपके पास 300 मेगापास्कल का एक मार्जिन अवेलेबल है, जो कि अगर इन केस कोई ना कोई उस पर एक्सेसिव लोड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेसेस बढ़ जाती हैं, तो इट कैन रेजिस्ट दैट एज वेल। सो दीज आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो एनालिसिस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें यूजली इन्हीं के दरमियान आपने चलना होता है। इधर यू हैव टू रिपोर्ट कि कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रही है, या आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना पड़ सकता है अगर आपको स्ट्रेसेस दिए हों, लोड्स दिए हों। तो इन दो प्रॉब्लम्स के दरमियान यू आर मूविंग इन द एनालिसिस प्रॉब्लम्स। अब इसी तरह हम आ जाते हैं डिज़ाइन पे, कि डिज़ाइन अभी जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल डिज़ाइन नहीं कर रहे। जो कॉलम फॉर एग्जांपल जिस तरह स्टील स्टील स्ट्रक्चर एक कोर्स है, उसमें डिटेल डिज़ाइन होगा पूरे कॉलम का कि कैसे आपने लोड्स को फिगर आउट करना है या उससे स्ट्रेसेस निकालनी है। हम सिंपल जी हमें लिमिटेशंस दी हुई होंगी। फॉर एग्जांपल हमें बता दिया गया होगा कि लोड कितना है, फिर आपके पास लेंथ और विड्थ बता दी होगी जिस जगह पे आपने कॉलम लगाना है। ठीक है, और इसी तरह आपको यील्ड स्ट्रेस दे दी होगी। तो आपने इन फैक्टर्स को यूज़ करके कोई भी सेक्शन सेलेक्ट करना है जो कि इनकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा कि लेंथ और वेट की, तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट सेक्शन। इसके लिए सेक्शन टेबल एंड वी विल सी कि कैसे उसे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्रॉपर डिज़ाइन होता है उसमें आपने ये चीज़ें भी खुद से कैलकुलेट करनी होती हैं, गिवन ऑन द कंडीशंस के लोड कितना है उस पर, ये डायमेंशंस क्या होनी चाहिए और यील्ड स्ट्रेस। तो बेसिकली अभी हम एक सिर्फ इक्वेशन वी हैव वन इक्वेशन, हम उसको यूज़ करते हुए चेक कर रहे हैं कि वो सेक्शन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। वो चेक हमने कैसे करना है कि बेस्ड ऑन सेक्शन टेबल हम कोई ना कोई सेक्शन, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ कि 100/360 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस सेक्शन की प्रॉपर्टीज होंगी, कोई इसकी सी की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू, आई भी होगा, ए भी होगा। फिर अब मुझे लोड भी पता है, ये सब फैक्टर्स भी पता है, तो मैं मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल दूंगा। ठीक है, जब मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगी तो मैं उसको कंपेयर कर लूंगा कि यील्ड स्ट्रेंथ से ये कम है या ज़्यादा है। अगर ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी मेरे पास आ रही है वो यील्ड स्ट्रेंथ से कम है, ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है ये सेक्शन ओके है। क्योंकि अब हमने इनिशियली मैंने आपको बताया है कि हमने स्पेसिफाई कर लिया कि हम हमेशा यही कहेंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो अगर आप किसी भी सेक्शन के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स निकालोगे, अगर आपको यील्ड की वैल्यू गिवन है, अगर वो इस रेंज में लाई कर रही है तो आप कहोगे हाँ वो सेफ है मेरा। अगर वो इससे ज़्यादा आपके पास इन वैल्यूज़ की बेस पे स्ट्रेस आ जाती है तो यू विल से कि जी मेरा कॉलम सेक्शन जो भी है दैट इज गोइंग टू फेल। सो दिस इज अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डिज़ाइन। इन केस के आपके पास ये ज़्यादा आ जाती है तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप दोबारा से कोई और सेक्शन सेलेक्ट करोगे, कोई स्ट्रॉन्गर सेक्शन लोगे ताकि आपके पास ये वैल्यू कम हो यील्ड स्ट्रेस से, और फिर आप उसको कहोगे कि वो सेक्शन मेरा पास हो रहा है। सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया how you have to apply this equation for the design purposes. Any question about this one? सर ये जो सर जो यील्ड स्ट्रेस है वो हमारे पास वर्किंग लोड से आती है ना सर? जो वर्किंग लोड हम लोग पुट करके इक्वेशन में यील्ड स्ट्रेस निकालते हैं। नहीं, देखो यील्ड स्ट्रेस अभी वो आपके पास आएगी मैक्सिमम लोड से, जो कि ये पी है। वर्किंग लोड तो छोटे वाला है ना, अब ये पी है, ये ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, अब इस पी से जो आपके पास स्ट्रेस आएगी ना, होती वो मैक्सिमम है, लेकिन आप उसको कहते हो कि जी ये मेरी यील्ड स्ट्रेस है। समझिए मेरी बात। फॉर एग्जांपल, हाँ, अब ये जो पी लोड है ये तो ये 40 किलो न्यूटन, ये ज़्यादा वाला लोड है। अब ये इस तरह याद रखो कि जो वर्किंग लोड है ना वो हमेशा लेस होगा जो भी पी लोड है, क्योंकि इसने एक्चुअल में लगना है कॉलम के ऊपर, लेकिन डिज़ाइन आपका ज़्यादा पे हुआ होगा। सर फिर हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कहाँ से आ जाएगी सर? अब देखो इन
दोनों चीज़ों में ना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन एक ऐसा आता है जो कि आपसे पूछता है कि जी मेरे पास ये पी लोड है एक्स, मैं इसको कह लेता हूँ 10 kN, ठीक है, या आपको वो लेट मी जस्ट सी वन क्वेश्चन। हाँ, आपको वो कहते हैं कि एक कॉलम है, ठीक है, उस पे ना कोई लोड लग रहा है 150 kN, ठीक है। अब वो आपसे पूछता है कि इस कॉलम में ना मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप कितनी होगी। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि इस P को जब मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, या ये P है कौन सा, पहले तो ये बताओ। अब उसने क्या है कि कॉलम पे ना इतना लोड लग रहा है, तो ये P को क्या मैं ये कहूँगा, वर्किंग लोड है वर्किंग लोड सर, है ये सर, वर्किंग तो लोड। दैट विल बी माई वर्किंग लोड। अब जब मैं वर्किंग लोड को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेस की वैल्यू आएगी। ये सर वो सिग्मा मैक्सिमम होगी। वो वैल्यू क्या होगी आपके पास, वो सिग्मा मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये लोड लग रहा है एक्चुअल जो भी है वर्किंग लोड, तो इससे जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रही है ना वो मैक्सिमम है। अब फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि सिग्मा वाई पी क्या चीज़ है। अब सिग्मा वाई पी ना एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। अब ये डिपेंड किस पे कर रही होती है, ये जो भी आपने स्टील सेक्शन या किसी भी, जिसमें आपने टेंसाइल टेस्ट किया होगा, तो हर टाइप के स्टील के लिए आपके पास एक यील्ड स्ट्रेस होती है, ऐसे ही है। तो वो जो यील्ड स्ट्रेस है ना, आप उससे सिंपली कंपेयर करते हो इस वैल्यू को कि ये वैल्यू उससे कम है या नहीं है, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेट करनी है कि ये वैल्यू कितनी है, तो वो जो आपके पास एक तो आपके पास पहली बात कि आप इससे कंपेयर करके फिगर आउट कर लोगे कि ये कितनी आती है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना कि मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस या मैक्सिमम कितनी इस पे एक्ट कर सकती है या डिजाइन में कितनी हमने यूज की होगी, तब उस केस में आप इसको 40 सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए यील्ड स्ट्रेस। मतलब अगर इधर 20 गिवन हो तो 20 से जो आप करोगे वो तो होगी कि एक्चुअल में कितनी डेवलप हो रही है, ठीक है। और अब जब आप 40 सब्स्टिट्यूट करोगे तो उससे जो वैल्यू आएगी आप कहोगे मैक्सिमम इतनी है, ये नहीं हो सकता कि इससे ज़्यादा हो जाए। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको आप कह देते हो कि यील्ड स्ट्रेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, या जो भी आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद स्ट्रेस निकाली है वो आपकी यील्ड स्ट्रेस होगी। क्लियर? यस सर। तो सिग्मा वाई को आप लिख लो कि सिग्मा वाई आपके पास जब आप पी सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में तो जो आएगी वो मैक्सिमम भी होगी और उसको आप यील्ड भी कहोगे, ठीक है। इसी तरह जब आप पी डब्ल्यू यूज करोगे तो जो आएगी वो भी आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन मैक्स, या आप इसको ऐसे लिख लो कि वो एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। दैट इज योर एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल स्ट्रेस आपके पास पी डब्ल्यू से आएगी, एंड दिस शुड बी लेस देन ये जो वैल्यूज हैं आपके पास। इज दिस क्लियर? ये वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी, पी डब्ल्यू से आपके पास सिग्मा एक्चुअल आएगी और वो एक्चुअल आपके पास इन वैल्यूज से कम होनी चाहिए, और ये दो वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये जब आप इसमें पी सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। ये मैक्सिमम वो बियर कर सकती हैं और उस मैक्सिमम बियरिंग को हम कह देते हैं कि वो यील्ड है, उससे ज़्यादा नहीं जाना। तो कमिंग ऑन टू दिस वन, हमारे पास ना ये इक्वेशन थी which we derived in the previous class as well। तो इसकी ना एक और फॉर्म भी है जो कि डिज़ाइन में यूजली यूज़ होती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगी पी ओवर ए प्लस पी ई सी डिवाइडेड बाई ए आर स्क्र सीकेंट एल ओवर 2 अंडर रूट पी ओवर ई आई। अब आपने एक फैक्टर पढ़ा होगा सेक्शन मॉडुलस का, किसी को पता है क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एनीवन? ये जो रेशियो होती है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई डिस्टेंस, डिस्टेंस जो भी सेंट्रॉइड से लेके उसका न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन में, दैट रेशियो जो है ना वो सेक्शन मॉडुलस होता है। अब इसका पर्पस क्या है, सिंपली
डिज़ाइन चार्ट्स में ना बजाय इसके कि अक्सर केसेस में ये होता है कि आई और वाई की सेपरेट वैल्यू की बजाय ना आपको सेक्शन मॉडुलस एक दे दिया होता है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस एस फैक्टर जस्ट टू हैव कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो ऑब्वियसली यू कैन सेपरेटली यूज़ दीज वैल्यूज एज वेल। अगर आप सेपरेटली यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको डायरेक्ट एक फार्मूलेशन इसी वैल्यू को इसके अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी बन सकता है सिग्मा का बेस्ड ऑन दिस एस फैक्टर। तो ये यूज भी हो रहा होगा डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो अगर मैं इसको लिख लूँ आई नो दैट रेडियस ऑफ जायरेशन से अगर मैं कोरिलेट करूँ तो दैट इज आर इज इक्वल टू आई ओवर ए या आई इज इक्वल टू ए आर स्केयर। तो आई कैन राइट इट एज ए आर स्केयर। इस y को इधर आई कैन रिप्रेजेंट इट बाय y और आई कैन रिप्रेजेंट इट with this c factor. Now if I substitute this particular factor into this equation, I will get p over a plus PE। अब यहाँ पे है ये C over AR स्केयर तो मतलब that will be equal to 1 over S। तो that will be secant L over 2 अंडर रूट P over EI। ठीक है। तो इसके बाद एक और फार्मूला था जो हमने यूलर इक्वेशन से पढ़ा था। अब दिस इज वन टाइप विच वी विल बी यूजिंग मोस्टली एंड देयर इज अनदर टाइप या एक और सिंप्लीफिकेशन है। वी नो कि यूलर इक्वेशन में लोड होता था। अब इन दोनों लोड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आई विल राइट इट एज पी यूलर पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। अब अगर इसमें से मैं लेंथ को सेपरेट कर लूँ तो लेंथ की इक्वेशन मेरे is there any issue? So I will get this equation for the length। अगर मैं इस फार्मूला को इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास एक और फॉर्म बन जाती है इस इक्वेशन की विच इज p over a p e secant over s। अब जब ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1/2 बाहर होगा then you will have under root pi square ei then this p over ei and then we have this p Euler or p critical you can also write it like this। so ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ये पाई बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा pi/2 p over PCR। so this is also one form। so it depends कि आपको कौन से known factors हैं। there are different correlation for this formula for acentric column। तो different question में different unknowns होते हैं। you can use that in the original form but you have these direct formulation as well if you can memorize so it will be also convenient। so it is entirely up to you कि आप जिसके साथ भी comfortable हो you can use that। let's solve one question related to these columns। let me just share। Usman? Mic is on। Usman? Excuse me, sir. yes सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई उसके बढ़ाने से सर यील्ड्स बढ़ेगी ना? moment of inertia considering this relationship सर वैसे पूछ रहा हूँ सर जो तो सर रेजिस्टेंस को बेंडिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप बढ़ाओगे तो आपके पास सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो इट कैन रेजिस्ट मोर स्ट्रेस तो स्ट्रेस कम होती जाएगी जितनी उसमें डेवलप होगी। यील्ड स्ट्रेंथ सर वही नहीं वो लोड ज्यादा रेजिस्ट करेगा लेकिन स्ट्रेसेस उसमें कम डेवलप होंगी। जैसे जैसे आपका जो है आई फैक्टर बढ़ेगा
लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप सिर्फ आई की बेस पे आप नहीं स्पेसिफाई कर सकते, आपको बाकी चीज़ें भी, अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूं, इसमें देखो लेंथ का भी एक रोल आ रहा है, फिर इस लोड का भी आ रहा है, सेक्शन मॉडुलस भी आ रहा है, एरिया भी आ रहा है, तो देयर आर मल्टीपल ई फैक्टर। हो सकता है आई ज़्यादा हो, ई बहुत कम हो, या ऑपोजिट। तो आप एक फैक्टर से ना क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अभी इसमें भी हम खैर देखेंगे कि लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूं तो वो यही है कि जैसे जैसे आपका आई बढ़ता जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि सेक्शन जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी ना वो कम होंगी। ठीक है, तो ये लेस होती जाएंगी जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो अच्छा, ये आपके पास एक प्रॉब्लम है इसमें है कि हमें एक सेक्शन दिया हुआ है W14/61। वी विल कम ऑन टू दिस लेटर कि इसका क्या मतलब है। तो इसको एज अ सिंपली सपोर्टेड कॉलम यूज किया हुआ है और इसकी टोटल लेंथ हमें दी हुई है 25 फीट। ठीक है, और हमें पता है कि इस पे जो लोड है ना 150 किप्स लग रहा है, एसेंट्रिसिटी 4 है, एंड वी हैव टू फिगर आउट मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है। अब ठीक है, वी नो द फॉर्मूलेशन, आई विल राइट इट अगेन, that maximum stress is P over A plus PE over S secant L over 2। अच्छा, बाय द वे ये जो L का कॉन्सेप्ट है ना, ये अगेन वही इफेक्टिव लेंथ वाला कॉन्सेप्ट है जो कि आप यूलर फार्मूला में भी कर चुके हो। तो इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड कॉलम, अभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड का मतलब है कि इस तरह का कोई कॉलम होगा ये कि दोनों साइड पे कोई हिंज सपोर्ट या समथिंग रोलर सपोर्ट या कोई भी सिंपली सपोर्ट हो, तो उस केस में एल और इफेक्टिव लेंथ जो है ना वो तो सेम रहती हैं। लेकिन इन केस कैंटिलीवर हो या कोई और टाइप हो तो उसमें कोई एल फैक्टर में चेंज आता था, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। और उसका एक टेबल भी होगा, आई थिंक यू कैन फाइंड दैट इन सम बुक, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो आई विल राइट इट ओवर हियर एज वेल कि ये इफेक्टिव लेंथ है। एंड देन देयर वाज पी ओवर ई आई। ठीक है, अब इसमें कुछ अननोन फैक्टर हैं। पहले तो ये 150 किप्स लोड लग रहा है, तो ये लोड को मैं क्या कहूँगा, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग एज वेल। विल दिस बी ई और पी डब्ल्यू? सो आई कैन से कि ये पी डब्ल्यू है जो एक्चुअल उस पर एक्ट कर रहा है। तो मेरे पास एक फैक्टर तो आ गया इस इक्वेशन। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी इसमें डेवलप होगी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लोड। तो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस लोड इनटू दिस वन एंड आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस कि कितनी स्ट्रेस आ रही है। ठीक है, एक चीज तो हो गई ये। दूसरी, अब आई कैन चेंज दिस एज और राइट दिस एज पी डब्ल्यू। अब ई फैक्टर जो कि सेंट्रिसिटी है वो भी मुझे गिवन है, दैट इज 4 इंचेस। ठीक है, देन दिस इफेक्टिव लेंथ is also given to me, that is 25 feet, or to be in same units I will multiply it with 12 to convert it into inches. Then again this p factor is also given, that is 150, so I can write it as 150 into 10 raised to power 3 just to have the units of pounds per square inch. Then this pw will also be same, and this one will also be 150 into 10 raised to power 3. अब मेरे पास आ जाता है एरिया, सेक्शन मॉडुलस, एंड दिस ई फैक्टर इज गिवन टू अस एज 29 into 10 raised to power 6 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, और विच सेम यूनिट्स में आ गए। ठीक है, और फिर मेरे पास रह जाता है ये आई। अब ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है ना ये हर सेक्शन के लिए डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में मुझे स्पेसिफाई कर दिया कि सेक्शन मेरे पास है 14/61, तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू गो टू दीज डिज़ाइन चार्ट्स विच आर अवेलेबल इन डिफरेंट बुक्स। सिबलर के भी एंड पे गिवन है और पाइटल के एंड पे भी गिवन है। तो इसमें आप ढूंढोगे कि आपका सेक्शन कौन सा है। फॉर एग्जांपल ओवर हेयर आई हैव हाईलाइटेड दिस वन, दिस 14/61, तो इसकी मुझे प्रॉपर्टीज गिवन है कुछ, दैट इज दिस एरिया, वो भी मुझे गिवन है, दैट इज 17.9। तो आई कैन से, एंड द यूनिट्स आर आल्सो इन स्क्वायर, so I will directly substitute that area as 17.9। फिर आ जाता है मेरे पास ये सेक्शन मॉडुलस।
और आई फैक्टर। अब जो सेक्शन मॉडुलस है ना वो दो एक्सेस हैं। अच्छा इसकी ना डायग्राम नहीं बनी हुई इधर, लेट मी जस्ट मेक अ डायग्राम फॉर यू पीपल। अच्छा ऐसे समझ लो कि जो ये z एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आप x कह लो, सॉरी ये हाँ ठीक है, इसको आप x कह लो और ये y, बाकी सब फैक्टर सेम है। तो अब यहाँ पे x एक्सिस का भी फैक्टर दिए हुए हैं कि i क्या होगा, s क्या होगा और r क्या है। इसी तरह y एक्सिस के लिए भी आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो माय क्वेश्चन इज कि हमें इसमें कौन सा वैल्यूज यूज करनी चाहिए, कौन सी i की वैल्यू या s की वैल्यूज यूज करनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम। सर एनीवन आई कैन। मिनिमम, आई मिनिमम सर। i मिनिमम क्यों? क्योंकि सर सिलेंडरनेस रेशियो थी ना कि आई मिनिमम पे वो ग्रेटेस्ट होगा। सर आई एक्स पुट करनी अच्छा सर हमने पड़ेगी ड्राइव मोमेंट ठीक जिसके है, वो अबाउट। भी आपकी बात ठीक है कि अगर आपको डायरेक्टली कुछ चीज़ें स्पेसिफाई ना हो तो मे बी यू कैन कंसीडर दैट कॉन्सेप्ट कि आप सिलेंडरनेस रेशियो से कोरिलेट कर लो। लेकिन यहाँ पे ना आपको एक चीज़ गिवन है कि दिस कॉलम डज नॉट बकल अबाउट वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है कि ये वाई एक्सिस पे तो बकलिंग नहीं हो रही, दूसरा एक्सिस कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है आपके पास। तो मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड इस कॉलम ने बकलिंग करनी है, ये एक्स एक्सिस के अराउंड ही ये कॉलम फेल होगा, ये चीज हमें बता दी हुई है इसने खुद से। ठीक है, तो यू हैव टू लुक फॉर दीज पर्टिकुलर सिनेरियोज कि जिस एक्सिस के अराउंड बकलिंग हो रही है ना, आपने उसी एक्सिस की प्रॉपर्टीज, क्योंकि वही एक्सिस डिफाइन करेगा कि कॉलम एज अ होल कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी उसमें और या कितना उससे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर दीज फैक्टर्स फॉर दिस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसमें आई जो है हमें गिवन है 640 और सेक्शन मॉडुलस इज गिवन टू अस एज 92.1. So I have this two values now as well with me, that is 640 and what was S 92.1. अब इसी क्वेश्चन में मेरे पास सब पैरामीटर्स आ गए। Now if I calculate this one, this will give कि इसमें maximum stress कितनी डेवलप हुई है। तो anyone just take out your calculator and give me the value of maximum stress that is being developed. सर एग्जाम में ये टेबल दिया गया होगा ना सर? Obviously. सर ये E29 into 10 raising power 6 है। Yes. सर 9031। 19,000. 9031। Anyone else? अच्छा इसमें आपने एंगल की यूनिट्स अपने चेंज की है? यू कैलकुलेटर में अपने नो एंगल सर नो। रेडियंस में कर दो। जब इस तरह की कोई इक्वेशन यूज कर रहे हो ना तो एंगल शुड बी इन रेडियंस। सर फिर आ रहा है 9095। एनीवन एल्स? यू नीड टू रीचेक।
344 क्या आंसर आ रहा है आपका? सर सॉल्व कर रहा हूँ, एक मिनट। अब्बास, अब्बास आप तो अभी क्लास में आए हो, मैं अटेंडेंस तो मार्क कर चुका हूँ। सर 430261.1. I have the answer as 15.53 into 10 raised to 3 psi. किसी के पास ये आंसर नहीं आ रहा? So anyway, you can try this one again. Your calculators, and you should get this answer because all the values are correct, and I'm not sure why you are not getting the right answers. So maybe there is some problem with the angles. 9095 ही आ रहा है सर, मैंने 2-3 दफा किया है। 9095. एक्सक्यूज मी सर, ये जो रेडियंस पे रखने वाली बात आपने की, ये सब फॉर्मूलाज के लिए एप्लीकेबल है कॉलम्स में? जिन फार्मूलाज में एंगल आ रहा है, just let me give me a moment, I will try it again. सर आई की वैल्यू 640 इंचेस 4 पावर है जी। So that comes out to be ये आप लोग कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इस एंगल को? I am getting the same answer. I just tried it सर 1 by again. cos सर 1 by 1 cos over cos यस सर 1 by cos सर of मेरे this पास only. 14.8 आ रहा है। 14.8 आ रहा है सर। I just tried it यस सर again and सर I've मेरे पास भी exactly got this 14.8 answer, आ रहा है। 1.5535. तो मेरे पास 114.8 आ रहा है सर, 14.894 So that whatever much है। is acceptable, but anyway, there was no much difficulty in doing that. So you can just try it again. Maybe you are making some mistake in substituting these values of loads or something. ठीक है, so this is your maximum stress, and over here you can also see कि ये जो हमारे पास maximum stress आ रही है, ये भी yield stress से कम ही आ रही है। तो इस केस में तो ऑब्वियसली वो कम आनी चाहिए क्योंकि उसने खुद से बताई हुई है कि ये सेक्शन है, तो ऑब्वियसली जो भी सेक्शन यूज़ किया होगा, बट इट इज़ काइंड ऑफ अ चेक कि हाँ आपका जो भी क्वेश्चन है या जो भी लोड है वो सेटिस्फाई कर रहा है। So this is the first part. In the second part, it has been asked कि what will be the factor of safety against yielding. अब ये important चीज़ है, इसमें इसने हमें yield load भी दिया हुआ है या yield stress भी दी। अब yield stress हमें पता है कि that is 36 into 10⁻³ और उसने हमें क्या है कि factor of safety कितना दिया होगा इन लोगों ने जब भी डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आई विल यूज द सेम इक्वेशन, लेकिन अब इस केस में मैं लोड क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें? पी डब्ल्यू और पी
सर पी यूज Sir, you करेंगे make- पी सर So we will use डिजाइन लोड directly, सर डिजाइन लोड we will directly use this p load, और हम इस इक्वेशन में अब हमें सिग्मा yp पता है, that is 36 into 10 raised to power 3. ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन से p की वैल्यू आ जाएगी. Then I will use my expression that p is equal to npw, और pw मुझे पता है, फिर मेरे पास n फैक्टर आ जाएगा और मुझे पता लग जाएगा कि कितना सेफ्टी फैक्टर उन्होंने रखा था while designing this particular column section. तो यहाँ पे फिर से s secant l/2 अंडर रूट p ओवर ei, जो भी इसकी वैल्यू बनेगी. अब अगेन ये a फैक्टर आपके पास गिवन था 17.9, this s factor was 92.1, this e was 4, this length was 25 into 12, then this p is again unknown, e factor is 29 into 10 raised to power 6, and I is 640. So you can substitute this equation directly into your calculator in terms of this unknown p, and you will get the value of p as 328 into 10 raised to power 3 pounds. ठीक है, अब आपके पास you can try this one and you will get this answer. अब आपके पास p आ गया. अब you have to report the factor of safety कितना है. ठीक है, अब I will use this expression. अब मुझे PW, it was given in the question. In this question, the PW is given, that is 150 kips. So I know PW is 150. This is 328 into 10 raised to power 3. That is equal to N, and PW is 150 into 10 raised to power 3 to have the same units. अब इससे क्या मेरे पास N का फैक्टर आ रहा है. सर 2.18 sir. 2.18 So it comes out to be 2.19. मतलब हमने 2.19 times excessive load consider किया था while designing this particular column, just to avoid any failure. So this is how, अब इस क्वेश्चन में या इस पार्ट से आपको पता लगा है कि ये how you are using the concept of this yield stress and this working load to get to the safety factor. और कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल इसमें आपसे डायरेक्टली लोड भी पूछा जा सकता है कि डिज़ाइन लोड क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछा जा सकता है, या वर्किंग लोड भी पूछा जा सकता है अगर आपको कोई मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन हो या कोई भी स्ट्रेस की वैल्यू गिवन और उस पर पूछा जाए कि लोड कितना एक्ट कर रहा है एक्चुअल में. तो यू कैन डू दैट. एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट? अच्छा, फिर हमारे पास एक तीसरी चीज है, that we have to report the yes. सर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी सर हम यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय और वर्किंग स्ट्रेस, इससे हम फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली. You can do that, in fact. से फाइंड की जा सकती है. 2.31 आता है सर इससे. एक मिनट, let me try this. 15,535 and the maximum working is 36. थोड़ा सा मे बी डिफरेंस आए तो फिर वही उसी डिफरेंस को कि स्ट्रेस का, असल में ना स्ट्रेस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफरेंट चीज़ होती है वैसे, तो मे बी वो आपके पास सेम भी आ जाए किस केसेस में, लेकिन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन दोनों के दरमियान. तो ट्राई डूइंग इट जिस तरह से उससे पूछा गया हो, क्योंकि वो भी तो एक ही बात है. खैर आपकी बात भी ठीक है कि वो भी उस हमें आइडिया दे रही हैं कि यील्ड स्ट्रेस कितनी ज़्यादा है वर्किंग स्ट्रेस से. तो दिस आई रिमेंबर इन सम टॉपिक कि हमने एक इस तरह की भी चीज़ आप देखोगे कि आप स्ट्रेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हो, वो डिफरेंट चीज़ होती है, और लोड्स पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. क्योंकि स्ट्रेस के फार्मूला में आप देखो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व, तो वो सब
मैच करके एक स्ट्रेस दे रहे हैं। इस तरह लोड जो है उसको तो हमने कोरिलेट कर लिया ना कि लोड इससे बस इतना ज़्यादा होगा और वो एक्चुअल में इतना लग रहा होगा। तो दैट इज़ सिंपल के एक अप्लाइड चीज़ है। और स्ट्रेस में ना, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लोड, उसमें वो एरियाज और वो सेक्शन मॉडुलस और आई सब फैक्टर्स हैं। तो मे बी इट विल गिव इट यू अ डिफरेंट आंसर। सो better stick to the factor of safety based on the loads. सर इफेक्टिव लेंथ क्या है? 5 to 12 इफेक्टिव लेंथ सर आपकी आवाज कट रही है सर। इफेक्टिव लेंथ का पूछ रहा है सर। इफेक्टिव लेंथ जो है ना, आई डोंट हैव द टेबल राइट नाउ। अच्छा, आपके पास एक टेबल होता था कि सिंपली सपोर्टेड बीम है या सिंपली सपोर्टेड कॉलम है या इस तरह कोई कॉलम है, इसमें लेंथ आई थिंक इट वाज डायरेक्टली इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह आपके पास अगर इस तरह का कोई कॉलम होता था, ये आपने उसमें पढ़ा होगा यूलर फार्मूला में, तो इसमें आप पूरी लेंथ नहीं लेते थे, वो हाफ लेंथ लेते थे, क्योंकि जो उसकी कर्व बनती है वो हाफ लेंथ पे बन रही होती है। इस केस में पूरी कर्व समथिंग बनती है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो एक डायरेक्ट टेबल है जिससे आपको पता लग जाता है। तो सपोर्ट कंडीशन से देख के लेंथ आप चेंज अक्सर यहाँ पे मे बी हाफ लेनी होती हो, और इस तरह वो फैक्टर्स हैं डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस के लिए। तो यू कैन सी दैट टेबल एंड उस तरह सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। ओके सर। So coming on to this one, and the last part of this example was to calculate the maximum lateral deflection. अब deflection के लिए भी हमने एक equation derive की थी, that was V maximum and it was equal to E into secant under root PL divided by 4EI, and by the way it was square, PL square divided by 4EI minus 1. So this was our equation. So if is there any question? So this E factor is given to us as 4, this secant, and then the load is also given to us as 150 into 10 raised to power 3. The length is given to us as 25 into 10 raised to power 25 into 12 square divided by 4 into E is given to us as 29 into 10 raised to power 6, and I was 640 minus 1. So if you solve this one, you will get the maximum deflection. Anyone, can you give me the answer? कितनी आ रही है deflection? So 0.393. So the maximum deflection comes out to be 0.393 inches. So this is how you use these formulations to calculate the deflection. So yes. सर ये इक्वेशन आपने सही लिखा Vmax का? इक्वेशन क्या है सर? ये आपने सही लिखा है या वो मैंने लिखा हुआ था E ऑफ E into secant of square root of E of P over E into L by 2 minus 1. मुझे समझ नहीं है आपकी बात। आप कह रहे हो ये इक्वेशन ठीक लिखी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन में मुझे लग रहा है गलत लिखी आपने सर। ये डिफ्लेक्शन की? जी जी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है सर, वो आप लास्ट टाइम हमने मैंने एक इस तरह की इक्वेशन लिखी थी, समथिंग अंडर रूट पी ओवर ई आई एल ओवर 2। तो इसको अगर मैं अंदर ले आऊँ तो वो एल स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, या आप उस तरह से कर लो। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो इट इज अप टू। So this is how you calculate the deflection. So we are going to stop over here because I think some students have lab today. So in the next tomorrow's class, tomorrow by the way we will have class at 10:30, and maybe it will go for 1 hour, so 10:30 to 11:30. Yeah. So tomorrow we will study another type of problems related to this column topic. Meanwhile, you can go through the derivation as well.
and today's lecture to understand what we have already done in this topic. So we are going to stop over here, and if you have any questions